Hello students, welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas. So friends, we have an application by the name Careers Cloud which you can go and download through the Play Store. And once you have downloaded, you can log in with your Gmail ID. And why I am suggesting you this application, because this is the one-stop solution for all the current affairs. This is the best of the best application and the platform where you can enhance your learning through help. Here you will be provided with multiple courses. Here you will be provided with multiple options of quizzes, and even you will be provided current affairs on daily basis. PDFs and quizzes will be provided to you on daily basis, both in Hindi as well as English. Here you will be provided current affairs with weekly basis and monthly basis also. Here remember, once you have done watching our video, then you can log in through this application, take out the PDF, read that PDF and go through the quizzes. That will enhance your preparation. Same you have to do for weekly and same you have to do for the monthly also. In monthly you will be provided with the top 100 important questions PDF and video also, that will enhance your learning, and it will be a very beneficial and important video for the revision perspective. And not just this friends, apart from this we also provide you banking and economic questions. We provide you state current affairs such as of Uttarakhand, UP, Tripura, Telangana, and many more. Not just this, apart from this, we also provide you topic wise current affairs, and the topics that we are providing you are really important. These topics are such as national affairs, international affairs, important days, sports, defense, science and technology, apps and web portals, obituary. These are the important topics that are being asked in various exams across India. So these are the topics that are must and should be covered and will be beneficial for the preparation of the students. हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर सितंबर मंथ। काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु रिसेंटली लॉन्च्ड द ई सोर्स वेब पोर्टल ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल सेक्रेटरीट। तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा ये आपका ई रिसोर्स वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। ये पोर्टल आपका काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो आपकी डिसीजंस लिए जाएंगे, जो मीटिंग्स होंगी तो उसमें डाटा प्रोवाइड कराने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, जो भी आपकी मीटिंग्स हो रही हैं, जो आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं, जो भी वो पॉलिसीज़ बनाएंगे उनके लिए जो डाटा की रिक्वायरमेंट होगी वो इस वेब रिसोर्स पोर्टल से, ई रिसोर्स वेब पोर्टल से इनको मिल जाएगा। एंड ये अमित शाह के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, which metro railway recently became a part of the elite group of the metros that have shifted from steel third rail to aluminium third rail। ये स्टील थर्ड रेल से एल्यूमिनियम थर्ड रेल में शिफ्ट करने वाली कौन सी मेट्रो बन गई अभी रिसेंटली? वो है कोलकाता मेट्रो रेलवे स्टेशन। करेक्ट, दे हैव डिसाइडेड टू शिफ्ट फ्रॉम स्टील थर्ड रेल टू एल्यूमिनियम थर्ड रेल। और जो ये थर्ड रेल होता है, ये मेथड होता है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिक पावर टू ट्रेन्स, ट्रैम्स या जो अदर आपकी रेल व्हीकल होती है। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे तो ये कौन सी है? कोलकाता मेट्रो रेलवे। ये आपके भी एल्यूमिनियम थर्ड रेल पे शिफ्ट हो गई है। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च DSC A20 यार्ड 325, जो कि पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट रहेगा फॉर द इंडियन नेवी। डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, पहला डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट फॉर इंडियन नेवी। करेक्ट, क्या नाम है इसका? DSC A20, जिसका नाम है यार्ड 325। पूछा जा रहा है कि किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया इसको फॉर इंडियन नेवी? तो ये टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, इनके द्वारा ये प्रोवाइड की जाएगी डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20, जिसको यार्ड 325 भी बोला गया। अभी ये पहली डिलीवर की जाएगी, ऐसी 5 और डिलीवर करनी है, एंड इसको बनाने में 175 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत आएगी। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एक हाई रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम। तो किसके द्वारा? यहाँ पे ऑप्शन 5 लिख लेंगे, और वो है गैलेक्स आई। ये जो गैलेक्स आई है, ये राइट ऑप्शन यहाँ पे बन जाता है। ये आपका एक स्पेस टेक स्टार्टअप कंपनी है। करेक्ट, इन्होंने यहाँ पे डेवलप किया आपका ये हाई रेजोल्यूशन एरियल ड्रोन बेस्ड सिंथेटिक अपर्चर रडार सिस्टम। करेक्ट, ये आपकी हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेजिंग या फिर हाई रेजोल्यूशन ऑल वेदर इमेज प्रोवाइड कराएगा, इवन ड्यूरिंग रेनी एंड क्लाउडी कंडीशंस में भी आपकी बहुत अच्छी इमेज प्रोवाइड कराएगा। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें
एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A INS डैश, इसको भी लॉन्च किया गया एट मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। तो हम बात कर रहे हैं 7th नीलगिरी क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट ऑफ प्रोजेक्ट 17A INS, क्या नाम रहेगा इसका, INS महेंद्रगिरी। ये लॉन्च किया गया था एट मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई महाराष्ट्र। करेक्ट, ये 4th फ्रिगेट है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाएगा बाय मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। एंड महेंद्रगिरी याद रखेंगे, ये ईस्टर्न घाट्स में एक माउंटेन पीक का नाम है जो कि उड़ीसा में लोकेटेड है। महेंद्रगिरी उसके नाम के बिहाफ पे इसको नेमिंग की गई है। नेक्स्ट, स्पेसएक्स ने भी 22 स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को लॉन्च किया फ्रॉम फ्लोरिडा USA। किस रॉकेट की मदद से, फैल्कन 9। ये इनका मोस्ट फेमस रॉकेट है, तो आपका मोस्टली आंसर यही रहा करेगा अगर फैल्कन अभी स्पेसएक्स का कोई रॉकेट पूछा जाए तो। कहाँ से लॉन्च किया गया, केप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन फ्लोरिडा USA से। नेक्स्ट, नेम द कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ, ताकि इंद्रजाल लॉन्च किया जाके, जो कि इंडिया का पहला AI एनेबल्ड काउंटर ड्रोन सिस्टम रहेगा। ये काउंटर ड्रोन सिस्टम बेसिकली क्या है कि आपका मान लो कोई भी दुश्मन का ड्रोन अगर हमारे इंडियन टेरिटरी में आ जाता है तो उसको नष्ट करने के लिए इंद्रजाल लॉन्च किया गया है। करेक्ट, इंद्रजाल ये आपका एक AI ड्रिवन प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें हम मशीन लर्निंग और AI कैपेबिलिटीज़ की मदद से आप ड्रोन्स को हम यहाँ पे काउंटर कर पाएंगे। करेक्ट, ड्रोन्स के थ्रेट्स को यहाँ पर हम काउंटर कर पाएंगे। नाम रहेगा इंद्रजाल। पूछा जा रहा है किसके द्वारा इसको डेवलप किया गया, तो ग्रीनी रोबोटिक्स प्लस भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा मिलके इस इंद्रजाल को यहाँ पे डेवलप करा गया है। एंड यहाँ पे ग्रीनी OS ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है जिस पर आपका ये पर्टिकुलर इंद्रजाल वर्क कर रहा है। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया विद भारत ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के साथ टू लॉन्च द इक्वालिटी ड्रोन ट्रेनिंग प्रोग्राम, वो रहेगा गरुड़ा एरोस्पेस। ठीक है, गरुड़ा एरोस्पेस ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया भारत ड्रोन एसोसिएशन एंड नेशनल ड्रोन पायलट एसोसिएशन के साथ, ताकि यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। एंड यहाँ पर जो भी आपके डिसेबल लोग होंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एंड उनको स्किल्स यहाँ पर सिखाए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया HIIA लॉन्च व्हीकल नंबर 47 कैरिंग एक्सरे एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जो कि है XRISM एंड स्लिम। तो इन दोनों को कैरी कर रहा है। पूछा जा रहा है किस स्पेस एजेंसी के द्वारा अलॉन्ग विद मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये लॉन्च करा गया। तो याद रखेंगे क्या नाम रहेगा उसका, वो है आपका जाक्सा एंड मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। जाक्सा क्या है, ये स्पेस एजेंसी है, कहाँ की, जापान की। तो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को ही हम क्या बोलते हैं, जाक्सा। नेक्स्ट, नेम द डिफेंस सेक्टर जिन्होंने रिसेंटली टेस्ट किया एफिकेसी एंड फुल प्रूफ फंक्शनिंग ऑफ द मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम। तो किसके द्वारा टेस्ट की गई, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ये आपका टेस्ट किया गया। इसको बनाया किसके द्वारा गया है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, ADRDE। आई रिपीट, एरियल डिलीवरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि ये एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म रहता है DRDO का। इनके द्वारा इसको यहाँ पर रिसेंटली डेवलप किया गया है, डिज़ाइन किया गया और डेवलप किया गया। किसको, एक आपके मिलिट्री कॉम्बैट पैराशूट सिस्टम को, और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको भी टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, नेम द टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जिसको रिसेंटली लॉन्च किया गया बाय नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया के द्वारा हीरो किम कुन ओके ये नाम की आपकी अटैक सबमरीन को रिसेंटली, ये एक टैक्टिकल सबमरीन है जो लॉन्च की गई थी नॉर्थ कोरिया के द्वारा। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड ये लॉन्च की गई थी, इसको डिज़ाइन किया गया ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को अंडर वाटर लॉन्च किया जा सके। करेक्ट। नेक्स्ट है किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया अ मास्टरशिप रिपेयर अग्रीमेंट USA गवर्नमेंट के साथ। ये रहेगी मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। मास्टरशिप रिपेयर एग्रीमेंट नाम सजेस्ट करता है, ये आपके जो शिप्स होते हैं उनको रिपेयरमेंट के लिए, उनको मेंटेन करने के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया। किसके द्वारा, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा ये साइन किया गया। 1934 में मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इस्टेब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर रहेगा मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस इंस्टीट्यूट ने अभी एक MOU साइन किया इसरो के साथ फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग in the areas of mineral resources and disaster management within the framework of National
नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। तो ये रहेगा क्या, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इन्होंने ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। इन्होंने अभी 5 साल का एक MOU साइन किया है इसरो के साथ, करेक्ट। किस लिए, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए। आपको मिनरल्स को कैसे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे उनको बाहर निकाल सकते हैं, कैसे उनको सेग्रीगेट कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की जा सकती है, तो उसके ऊपर रिसर्च करने के लिए ये MOU साइन किया गया। नेक्स्ट, नेम द डिवाइस जिन्होंने रिसेंटली अभी डेवलप किया गया इसरो के द्वारा टू एनहेंस द सेफ्टी ऑफ फिशरमैन ड्यूरिंग द सी एक्सपेडिशन। तो एक अभी डिवाइस डेवलप किया गया है इसरो के द्वारा, वो आपका फिशरमैन की सेफ्टी के लिए ड्यूरिंग सी एक्सपेडिशन। नाम रहेगा नभ मित्रा। नभ मित्रा ये आपका नाम रहेगा इस डिवाइस का, करेक्ट। इसकी नभ मित्रा की टेस्टिंग कहाँ पर हुई थी, कोल्लम केरला में हुई। एंड ये जो इसरो के SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि लोकेटेड है अहमदाबाद गुजरात में, उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और साइंटिस्ट और जो भी आपके फिशरमैन्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए इसको डेवलप किया गया है। एंड ये 2-वे कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा और ये सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन रहेगी। नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 2 रिसोर्सेज डिजाइन, जो कि है 4th वर्जन ऑफ द प्रिवेंटिंग सुसाइड एंड फिर दूसरा है पॉलिसी ब्रीफ ऑन द हेल्थ ऑफ एस्पेक्ट्स ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सुसाइड एंड सुसाइड अटेम्प्ट्स। तो पूछा जा रहा है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी 2 रिसोर्सेज को लॉन्च किया। WHO के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एंड इन्होंने के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई जिसमें बताया कि हर 100 डेथ में से 1 डेथ जो होती है वो सुसाइड की वजह से होती है ग्लोबली। एंड सुसाइड की वजह से हर साल हमें 7 लाख ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो कि इफेक्ट होते हैं, चाहे वो उनके नोन हो, आसपास के लोग हों, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हर साल इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट 7 लाख लोगों को बिकॉज ऑफ द सुसाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद इसरो एंड इन स्पेस टू सपोर्ट स्पेस टेक इनोवेशन थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। तो वो है अमेजॉन वेब सर्विस, AWS, करेक्ट। AWS ने अभी रिसेंटली इसरो एंड इन स्पेस के साथ यहाँ पे MOU साइन किया। और ये जो MOU था बेसिकली क्या था कि जो भी आपकी नए स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं उनको हेल्प करने के लिए, उनको जो डाटा है वो प्रोवाइड कराने के लिए थ्रू क्लाउड कंप्यूटिंग। अब जैसे अमेजॉन वेब सर्विस, ये AWS किसका है, अमेजॉन का है क्लाउड सर्वर। फिर गूगल GCP की बात करें तो ये गूगल का हो जाता है। एज्योर की बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट के आपके क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए 2 नए एयरक्राफ्ट जिसका नाम है B360, करेक्ट। ये एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम से लेस रहेंगे। एंड इनको अभी रिसेंटली ऐड किया गया, करेक्ट, टू कैरी आउट कैलिब्रेशन ऑफ ग्राउंड नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स। तो इनको अभी यहाँ पे एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा इन 2 एयरक्राफ्ट को ऐड किया गया विद एडवांस स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन सिस्टम इनटू इट्स फ्लाइट इंस्पेक्शन यूनिट्स फ्लीट टू कैरी आउट कैलिब्रेशन ऑफ ग्राउंड नेविगेशन एंड लैंडिंग एड्स। नेक्स्ट, इन सितंबर स्पेसएक्स ने 22 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया ऑफ स्टारलिंक। ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च किया गया, फ्लोरिडा USA से लॉन्च किया गया। क्या नाम रहेगा रॉकेट का, फैल्कन 9। नेक्स्ट, अभी इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम को, जो कि एक मल्टी स्टेज पैराशूट रहेगा फ्रॉम अ कार्गो एयरक्राफ्ट। पूछा जा रहा है किस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया इस पैराशूट को। तो ये टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम, ये एक मल्टी स्टेज पैराशूट है, करेक्ट। इंडियन एयरफोर्स ने इसको अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ये आपका एल्यूमिनियम से बना हुआ आपका पैराशूट रहेगा। इसको डेवलप किया गया है, बनाया गया है एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। आई रिपीट, एयरबॉर्निक्स डिफेंस एंड स्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा आपका ये एल्यूमिनियम से बनाया हुआ आपका पैराशूट रहेगा, टाइप 5 हैवी ड्रॉप सिस्टम। और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसको टेस्ट किया गया। 10 टन तक ये आपका भार को संभाल सकता है, 20 टन तक। नेक्स्ट, मनोज आहूजा जो कि सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने लॉन्च की मोबाइल एप्लीकेशन एंड द वेब पोर्टल फॉर जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे टू डैश। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया, इन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन एंड द वेब पोर्टल फॉर जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे टू ट्रांसफॉर्म एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन इंडिया। हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
फिर हम देख रहे हैं अभी आपके ड्रोन्स भी आ गए हैं। तो इन सब की मदद से अगर हम कोलैबोरेट करके आपकी कोडिंग करके अलग अलग सॉफ्टवेयर्स बना के अगर हम साथ में आए तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड की जा सकती है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर को। इससे काफ़ी ज़्यादा आपके फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, डाटा मिलेगा, वेदर का डाटा मिल जाएगा आपका, कैसे सॉइल उगानी है, सॉइल में कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, फार्मर्स को क्या क्या प्रैक्टिसेस अपनानी चाहिए, तो उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है ऑप्शन 2। Next, name the personality who has recently launched first of its kind vigilance compliant information management system portal to enable people to file graft complaints against government एम्प्लॉयज़। तो विनय कुमार सक्सेना ये आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, इनके द्वारा अभी विजिलेंस कंप्लाइंट इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया गया ताकि जो भी आपका अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय करप्शन में है, आपका ब्राइब डिमांड कर रहा है, रिश्वत डिमांड कर रहा है, तो उनके खिलाफ यहाँ पर केस रजिस्टर किया जा सके, उनके खिलाफ यहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं। ये पोर्टल में सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको, और जो भी आपको यहाँ पे अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करनी है आप यहाँ पे कर सकेंगे। नेक्स्ट, इन विच कंट्री अ ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट रिसेंटली डिस्कवर्ड एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू 4,76,000 ईयर्स अगो। तो वो है जाम्बिया। जाम्बिया में यहाँ पे याद रखेंगे ग्रुप ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया ओल्डेस्ट वुडन स्ट्रक्चर जो कि 4,76,000 साल पुराना आपका वुडन स्ट्रक्चर रहेगा। कहाँ पे? जाम्बिया में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली अनवेल किया 5th जनरेशन मेन बैटल टैंक द मेरकावा मार्क 5 बैरक विच ट्रांसलेट्स टू लाइटनिंग इन हिब्रू। तो याद रखेंगे 5th जनरेशन मेन बैटल टैंक द मेरकावा मार्क 5 बैरक, ये आपका इसराइल का टैंक रहेगा और हिब्रू में इसको लाइटनिंग के नाम से जानते हैं। और हम जानते हैं अभी इसराइल एंड हमास के बीच में काफ़ी फाइट चल रही है, वॉर चल रही है, करेक्ट, अभी भी ऑनगोइंग वॉर है ये। नेक्स्ट, इन विच स्टेट 3rd मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज ऑफ द इंडियन नेवी यार्ड 77 LSAM-9 लॉन्च की गई बाय कमांडर जी रवि इन सितंबर। तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश में ये आपकी 3rd मिसाइल कम एम्यूनेशन बार्ज ऑफ इंडियन नेवी यार्ड 77 LSAM लॉन्च की गई बाय कमांडर जी रवि। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया। और जो ये बार्ज रहेगी बनाई गई है अंडर द रूल्स ऑफ इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग एंड इसकी जो लाइफ स्पैन रहेगी 30 ईयर्स का इसका लाइफ स्पैन रहेगा। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम। यह एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम अभी लॉन्च किया गया किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। गूगल ने किसके साथ टाइप किया? NDMA नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NCS नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा मिलके ये एंड्रॉयड अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम को यहाँ पे लॉन्च किया गया ताकि अर्थक्वेक के बारे में पहले से इसे अलर्ट प्रोवाइड कराए जा सके। नेक्स्ट, किस कंट्री ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया फर्स्ट डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन नेम्ड हाइकुन। तो हाइकुन ये पहली डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन रहेगी किसकी? ताइवान की। हाइकुन का मतलब होता है मिथिकल सी क्रिएचर, राइट। चाइनीज में हाइकुन को बोलते हैं मिथिकल सी क्रिएचर, और ये ताइवान की ही रहेगी हाइकुन आपकी एक डोमेस्टिकली बिल्ड सबमरीन। 1.53 बिलियन डॉलर की लागत से इसको यहाँ पर बनाया जाएगा। ये आपकी डीजल प्लस इलेक्ट्रिक पावर्ड सबमरीन रहेगी और 2024 के एंड तक इसको यहाँ पे डिलीवर किया जाएगा। नेक्स्ट, इन सितंबर 2023 चाइना ने अभी रिसेंटली एक नई रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जिसका नाम है याओगन 33D। किस रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया? तो वो है लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का नाम रहेगा। क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि याओगन 33D सैटेलाइट किस कंट्री की है? चाइना की। लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट किस कंट्री का है? चाइना का। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का, नेम द कंट्री जिन्होंने रिसेंटली लॉन्च किया 3rd मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट नूर 3 इनटू द ऑर्बिट। तो ये जो नूर नाम की आपकी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ना, ये किसकी होती है? ये ईरान की है, और अब इसका 3rd मिलिट्री इमेजिंग सैटेलाइट लॉन्च किया है इनटू लो अर्थ ऑर्बिट जो कि 450 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ रहेगी, तो ईरान के द्वारा। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर सितंबर मंथ। अब इसके बाद आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पे जो कि आपकी बेनिफिशियल रहेंगे काफ़ी ज़्यादा रिवीजन के लिए। चलिए स्टार्ट करें। इसरो के साथ किस क्लाउड प्लेटफॉर्म ने टाइप किया ताकि उनकी AI कैपेबिलिटीज़ पे बढ़ावा आ सके? AWS के साथ। फिर अभी इंडियन फुटबॉल टीम को ऑफिशियली स्पॉन्सर कौन सी एयरलाइन कर दिया? फिर ऑफिशियल एयरलाइन कौन सी हो गई है? वो है इंडिगो, करेक्ट।
फिर इसी के साथ साथ बताएंगे स्किल्स ऑन व्हील्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया, धर्मेंद्र प्रधान एंड ओम बिरला जी के द्वारा मिलकर यहाँ पे स्किल्स ऑन व्हील्स को लॉन्च किया गया। आईआईटी कानपुर ये किस बैंक के साथ टाई अप कर रहा है ताकि इनोवेशन को बढ़ावा दिया जा सके, स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा सके, तो वो है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलके। फिर इसी के साथ साथ अभी किस रेलवे स्टेशन का नाम रीनेम कर दिया गया कैप्टन तुषार महाजन के नाम के बिहाफ पे, तो वो है उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम चेंज करके किन के नाम के बिहाफ पे रख दिया गया है, कैप्टन तुषार महाजन। फिर किस स्टेट में 50,000 रुपये दिए जाएंगे टू द डॉटर्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वो है हरियाणा में। एंड हरियाणा में ही याद रखेंगे ई भूमि पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। अगर पूछा जाए 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस ये कहाँ पर होगी, तो मुंबई में हमें देखने को मिलेगी 14th एडिशन ऑफ वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस। नेक्स्ट अगर पूछा जाए गृहा लक्ष्मी स्कीम, गृहा लक्ष्मी स्कीम ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च की गई, तो कर्नाटका के द्वारा लॉन्च की गई। देन अगर पूछा जाए किस स्टेट के द्वारा 27% रिजर्वेशन देखने को मिल रही है ओबीसी में इन देयर लोकल बॉडीज जैसे पंचायत, तो किस स्टेट के द्वारा, गुजरात के द्वारा। देन अभी नीति आयोग ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया एक एमओयू ताकि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है ना उनकी ट्रैकिंग की जा सके, तो वो रहेगा नीति आयोग अलॉन्ग विद यूएनडीपी। देन किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया या फिर इंडिया के द्वारा पहला एडिशन होस्ट किया गया ग्लोबल इंडिया एआई का, राइट, ग्लोबल इंडिया एआई का, जो कि अभी अक्टूबर में होगी। देन पिंक टॉयलेट्स की अगर बात की जाए, पिंक टॉयलेट्स ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, त्रिपुरा के द्वारा, पिंक टॉयलेट्स। फिर इसी के साथ साथ बताएंगे ज़रा अभी रिसेंटली वन नेशन वन इलेक्शन इसके लिए एक पैनल सेटअप किया गया और इस पैनल को हेड कौन कर रहे हैं, वो है रामनाथ कोविंद जी। नेक्स्ट बताएंगे अभी रिसेंटली विस्तारा किससे मर्ज कर रहा है, एयर इंडिया से मर्ज कर रहा है। देन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी 3 साल की एक पार्टनरशिप करी किस कंपनी के साथ, मेटा के साथ, जो कि फॉर्मली नोन एज फेसबुक। फिर अभी S20 कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई थी, यूपी में हुई थी, किसके द्वारा इनॉग्रेट की गई, जितेंद्र सिंह के द्वारा इनॉग्रेट की गई। देन अभी बताएंगे किस स्टेट में हर ट्यूसडे को कार फ्री डे मनाया जाएगा, करनाल में, करनाल का नाम आते ही क्या याद रखेंगे, हरियाणा में, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ सैटरडे को, हर सैटरडे को स्कूल की छुट्टी बोल दी गई, किस स्टेट के द्वारा, नागालैंड के द्वारा। देन फिर यहीं पे याद रखेंगे वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू इंस्टॉल किया गया एट G20 समिट वेन्यू, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में, कहाँ पर है, भारत मंडपम में, ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट नटराजा स्टैचू। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जैद चैरिटी मैराथन, इनॉग्रल एडिशन ऑफ जैद चैरिटी मैराथन, ये कहाँ पर होगी इनॉग्रल एडिशन, तो ये केरला में हमें देखने को मिलेगा। फिर बंगाल डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, 15 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाएगा, ये याद रख के चलेंगे। इन विच स्टेट एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति द 2-week long इंडो मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी कमेंस्ड एट डैश लोकेशन, तो याद रखेंगे हरिमऊ शक्ति एक्सरसाइज का नाम रहेगा, 2 week long ये एक्सरसाइज रहेगी, इंडियन आर्मी एंड मलेशियन आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हो रही है। पूछा जा रहा है लोकेशन बताओ कहाँ पर होगी ये एक्सरसाइज, तो मेघालय में हमें ये देखने को मिलेगी ये वाली एक्सरसाइज, करेक्ट। फिर इसके अलावा याद रखेंगे जो इससे पुराना वाला एडिशन था हरिमऊ शक्ति का, वो कहाँ पर हुआ था, वो मलेशिया में हुआ था, और ये वाला एडिशन कहाँ पर हो रहा है, हरिमऊ शक्ति का मेघालय में, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहेगा। नेक्स्ट, फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर, लेजेंडरी लेफ्ट आर्म स्पिनर एंड पद्मश्री अवॉर्डी Bhishan Singh Bedi passed away in October 2023. Question asked here is, in which year did he receive Padma Shri Award for Sports? So in which year did he receive Padma Shri Award for Sports? He received this Padma Shri for Sports in 1970. Bhishan Singh Bedi, he passed away at the age of 77. He was born in 1946 in Punjab, right? And he took 1560 wickets, more than any other Indian bowler in 370 matches, correct. And in 1970 he was honored with Padma Shri and he was honored with Arjuna Award in 1969. Next, when was UN Day observed across the globe? UN Day was observed on 24th of October across the globe this year, correct. And this is basically the anniversary of the day on which UN Charter entered into a force in 1945. So that means we can say on 24th of October 1945
correct? We observed the first UN day, or on this day it was the UN Charter that has entered into force. Next thing, remember, question can be asked that in 2023 which edition of UN Day was observed. So it was the 78th anniversary of the UN Day. Then there was a theme, that is the front lines of climate action. The front lines of climate action. This is the theme here. Next, when was World Polio Day observed across the globe? So World Polio Day was observed on 24th of October, right? And it is to highlight the importance of the efforts to eradicate polio. And this year in 2023, it was the 22nd edition of the World Polio Day. Next, Center informed the Supreme Court that the tenure of the National Commission for Safai Karamchari has been extended until 31st of March till 2025. I repeat, Center informed the Supreme Court that the tenure of the National Commission for Safai Karamchari has been extended till 2025. This National Commission for Safai Karamchari, it was constituted in 1994. It is a statutory body, right? And it is established for a period of 3 years back then, and it is to ensure the rights किनके, सफाई कर्मचारी के. ठीक है, तो याद रखेंगे सफाई कर्मचारी के राइट्स के लिए ये इस्टेब्लिश करा गया था. चलिए नेक्स्ट, who has been recently appointed as the chairperson of the Police Complaints Authority. पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी के अभी जो चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं वो कौन रहेंगे? पूनम ए बांबा. पूनम ए बांबा भी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं चेयरपर्सन ऑफ द पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी. नेक्स्ट, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड $175 million लोन फॉर इंडिया एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ द मध्य प्रदेश रोड नेटवर्क. मध्य प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, बेटर रोड्स बनाने के लिए, कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए अभी किस बैंक ने $175 million का लोन अप्रूव किया है इंडिया के लिए? तो वो रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक. करेक्ट, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए एंड जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश में उसको बेटर करने के लिए ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर का यहाँ पे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर करा जाएगा इन द मध्य प्रदेश. इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने यहाँ पर ये लोन अप्रूव करा. नेक्स्ट, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने एक्सपेंड किया रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफर्ड थ्रू आरबीआई रिटेल डायरेक्ट पोर्टल बाय अलाउइंग रिटेल इन्वेस्टर्स टू सब्सक्राइब टू फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स, जो कि 2020 के टैक्सेबल रहेंगे, जो है FRSB. क्वेश्चन है कि जो सब्सक्रिप्शन है ऑफ बॉन्ड का विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश अप टू हाउ मच? अप टू 20,000 रुपीज. तो ऑप्शन 5 यहां पर आपका बिल्कुल ठीक रहेगा. नेक्स्ट, हाउ मेनी एंटिटीज आर रिसेंटली एम्पेनल्ड बाय सेबी टू प्रोवाइड डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज. तो 12 एंटिटीज एम्पेनल्ड हैं आपकी सेबी के द्वारा टू प्रोवाइड दिस डिजिटल फॉरेंसिक सर्विसेज. करेक्ट, ऑन साइट यहाँ पे डाटा एक्विजिशन के लिए, सर्च के लिए, शीजर ऑपरेशंस के लिए ये आपके फॉरेंसिक सर्विसेज जो प्रोवाइड करेंगी. कैसी कितनी कंपनीज है, कितनी ऑर्गेनाइजेशंस है? वो है 12. करेक्ट, और कितने साल के लिए एम्पेनल्ड रहेंगी? ये वैलिड रहेंगी फॉर 2 years. Next, Dash became the first country in the world to test fire a medium caliber maritime electromagnetic railgun from the offshore platform. तो किस कंट्री के द्वारा ये टेस्ट किया गया और वो पहली कंट्री बन गई इन द वर्ल्ड टू टेस्ट फायर अ मीडियम कैलिबर मैरिटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन? वो है जापान. क्या रहेगी कंट्री? जापान. ठीक है, तो जापानीज मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, इन्होंने अभी रिसेंटली टेस्ट फायर की एक मीडियम कैलिबर मैरिटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन, और इससे जापान पहली कंट्री बन गया है वर्ल्ड में जिन्होंने ये टेस्ट किया है. दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स. आई होप आपको सेशन पसंद आया. ये था आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सितंबर मंथ. ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड जो बच्चे हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को. So that's all for the day, friends. Thank you and have a nice day. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.